Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are doing good and you are staying back at home and protecting others as well. आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं and the topic is working capital management. Today we are going to discuss its overview and before we are going to start this topic, सबसे पहले जी आप सबको रमज़ान की मुबारकबाद and I hope कि आपके रोज़े अच्छे गुजरेंगे uh, घर में बैठ के जो कि कोरोना की वजह से हम घर में बैठे हुए हैं। सो आई होप कि बाहर जाने की भी ऐसी ज़रूरत नहीं और गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। सो आई होप कि आप लोगों का रमज़ान अच्छा गुजरे और आपके घर से जो लर्निंग है उसमें भी ज़्यादा मुश्किलात ना हो। सो वी हैव रिड्यूस द टाइमिंग of the lecture as well as of class time जिसको हम कहते हैं and still if you have any question query तो आप किसी भी वक्त पूछ सकते हैं yes there were few queries I apologize there were two queries I couldn't able to answer and I'll try to answer it now क्योंकि वो काफ़ी ऐसे टाइम पे थी जब मैं काफ़ी बिजी था तो couldn't able to answer but I will try my best to answer it today or tomorrow ओके जी आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं and what we are going to study in our working capital management. So, after studying this particular topic, by the way, this topic is taken from chapter number 8 of Van Horn's book, which is already uploaded in your classroom app. So, you can download it from there and what we are going to discuss today. So it is it explains how the definition of working capital differs between financial analysts and accountants. So working capital, as the name suggests, working capital होता क्या है? तो डेली का जो आपका कैपिटल यूज हो रहा होता है, it is not a long term thing as the name suggests, it is a short term thing and it also helps you to this topic helps you to understand the two fundamental decisions issues in working capital management, trade off which is involved in making these decisions. So हम उन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. In today's lecture, most probably we are just looking into the overview and maybe later on some other time we are going to discuss in depth के इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं. सप्लाई चेन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें काफ़ी हद तक इन्वॉल्व होता है. So we might discuss if we get time during a semester. If we left with some time तो हम उस टॉपिक को भी शायद कवर करें. Okay, Ji, what else we are going to cover today? So we will discuss how to determine the optimal level of current assets. So as mentioned earlier, current assets को ही हम लेके चलेंगे ना कि fixed asset को. थोड़ा सा discussion होगी fixed asset की, but most of the time we are going to talk about current assets or liquidity or related things. We are going to discuss and describe the relationship between profitability, liquidity and risk. तीनों चीजें आपस में कैसे लिंक करती हैं. अगर liquidity ज़्यादा होगी तो profitability कैसी होगी. अगर liquidity ज़्यादा होगी तो risk कैसा होगा. तो इन चीज़ों को हम आज के lecture में cover करेंगे ताकि आपकी कुछ understanding और कुछ base बने working capital management की. We are also going to explain how to classify working capital according to its component and according to time. So दो चीज़ें होती हैं हमारे पास components कौन कौन से working capital के होते हैं और time कैसे लेके चल रहे होते हैं. ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा बता दिया कि जब working capital की बात करते हैं तो हम current पे रहते हैं. हम 1 year से नीचे नीचे की बात करते हैं. हम 1 year से ऊपर जाने की कोशिश नहीं करते. So it is a short term thing, not a longer term thing. तो आज के lecture में इसको भी थोड़ा सा discuss करेंगे. And these are the few things we are going to talk about today. Let's start with working capital overview. So working capital concept and issues को हमने आज discuss करना है. तो होता क्या है working capital concept? It is a net working capital, current assets minus liabilities, forms investment in करंट एसेट. तो करंट एसेट में जब भी फर्म इन्वेस्ट करती है तो वो वर्किंग कैपिटल को सामने रख के इन्वेस्टमेंट कर रही होती है. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म्स करंट एसेट एंड द फाइनेंसिंग नीड्स टू सपोर्ट करंट एसेट्स, क्योंकि अगर करंट एसेट ही नहीं होंगे तो आप किस तरीके से शॉर्ट रन गोल्स को फॉलो कर सकेंगे. तो दिस इज वन ऑफ द रीजन वी आर गोइंग टू वर्क ऑन वर्किंग कैपिटल. What is the significance of it? So, in a typical manufacturing firm, current assets exceed one half of total assets.
सो एज आई मेंशन कि करंट एसेट्स को आपने सामने रखना है। अगर आपने पेमेंट्स करनी है तो यू शुड बी हैविंग करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन कौन से हो जाते हैं? वी हैव कैश, we have shares maybe, and unmovable प्रॉपर्टी हो गई, मूवेबल भी शायद होती हो, मेरा नहीं ख्याल होती है। सो मशीनरी की बात होगी, वी तो हमने फिक्स की बात ही नहीं करनी। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में, एज इट इज मेंशन, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स की बात हो रही है, क्योंकि दे आर मैन्युफैक्चरिंग, दे शुड बी हैविंग कैश इन हैंड। उन्होंने कोई भी रॉ मटेरियल परचेज करना है, कुछ भी परचेज करना है, so they have to purchase it, make it, and manufacture it, and they have to sell it. So इसलिए उनके पास करंट एसेट्स ज़्यादा होना चाहिए। नॉट लाइक सर्विसेज जिनके पास करंट एसेट्स की ऐसे ज़रूरत नहीं होती, तो वो फिक्स में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। एक्सेस लेवल कैन रिजल्ट इन सबस्टैंडर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अगर एक्सेस ज़्यादा होगा तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है। उसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे किस तरीके से कम हो सकता है। करंट लाइबिलिटीज आर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग फॉर स्मॉल फर्म्स। यस इट इज लाइक, तो इट रिक्वायर्स कंटिन्यूस डे टू डे मैनेजरियल सुपरविजन, क्योंकि ये डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होती हैं। आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको उसकी फिनिश गुड बनाई और उसको प्रोडक्ट को सेल कर दिया, सेल होती है। फिर जो कैश आ रहा होता है वो आपके करंट एसेट्स में आ रहा होता है, कैश कैश की सूरत में आ रहा होता है। तो यू हैव टू सी कि आपको किस तरीके से डे टू डे चीज़ें मैनेज हो रही हैं। योर सुपरवाइजर शुड बी वेरी एक्टिव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड सी कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, कहीं से पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो रिकॉल द रेशियो एनालिसिस वी हैव डन, तो उसमें कुछ एसेट्स से रिलेटेड हमने रेशियोज डिस्कस की थी, डे टू डे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड की थी। तो मैंने उस टाइम बताया था आपको कि जो डे टू डे ट्रांजेक्शन होती हैं, जितनी जल्दी पैसा रिकवर होता है, इन्वेंट्री से रिलेटेड हमने रेशियोज की थी। तो इन्वेंट्री जितनी जल्दी हम निकाल सकते हैं, या जब हमने रिकवरी की तरफ जाना है तो जितनी जल्दी हमारा पैसा रिकवर होता है, दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर पैसा देर से रिकवर होगा तो प्रोविजन अच्छी नहीं होगी, और हमारा स्टॉक भी अगर हमारी शॉप में, हमारे वेयर हाउस में पड़ा रहता है, तो ये सारी चीज़ें मिलके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी डैमेजिंग होती हैं। तो वर्किंग कैपिटल ये सारी चीज़ों को देख रहा होता है कि क्या हमारे हमारा स्टॉक कहीं गोडाउन्स में तो नहीं पड़ा हुआ। अगर गोडाउन्स में पड़ा हुआ है तो क्यों नहीं सेल हुआ, या हमने उसको क्यों नहीं अपने गोडाउन से निकाला। क्योंकि हमें गोडाउन्स न्यू स्टॉक के लिए एम्प्टी करने होते हैं, हमारा न्यू स्टॉक बन रहा होता है, हमारे न्यू प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, मैन्युफैक्चर हो चुकी होती हैं, हमने गोडाउन्स में रखने होते हैं। So for that particular thing, we have to finish our old material, or not a raw material, but the inventory, and we have to bring a new one. तो हमें डे टू डे हमारा जो मैनेजर है या सुपरवाइजर है, he has to be very sharp to look into these matters, just like हमने गुल अहमद की बात की थी, खाड़ी की बात की थी, why they are putting sale after every few months, क्योंकि उनके न्यू वॉल्यूम्स आ रहे होते हैं। फीमेल्स को इन चीज़ों का शायद ज़्यादा अच्छी तरह आइडिया हो कि एक-एक सीज़न में 4-4 वॉल्यूम्स निकाल रहे होते हैं। लॉन अभी आने वाली है या आ चुकी है, उसके 4-4 वॉल्यूम निकालेंगे। ईद के लिए अलग से निकालेंगे, बड़ी ईद पे आएँगे तो अलग से वॉल्यूम्स निकालेंगे। और अभी समर का सीज़न ख़त्म नहीं हो रहा होता तो फॉल का मटीरियल आना शुरू हो चुका होता है। सो व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, दिस इज़ ऑल देयर सुपरविज़न एंड मैनेजरियल सुपरविज़न एंड डे टू डे थिंग्स, क्योंकि अगर वो सारा मटीरियल अपने गोडाउन्स में रखें या ना सेल कर पाएँ, so what is going to happen? Their new stock will where to put their new stock. They might not have a space to put their new stock, so they have to finish their older stuff. तो older stuff को सेल पे लगाएंगे तो नया नए के लिए जगह बनेगी। So this is the whole story behind it. तो इसलिए it requires continuous day to day managerial supervision. डे टू डे नहीं होगी, मंथ्स पे बात चली जाएगी या वीक्स पे बात चली जाएगी, सॉरी, that person, we are not require that person, so we might need to change a person, and फिर वो न्यू जॉब के लिए उस पर्सन को भी देखना पड़ेगा, and we have to look for a new person as well. So these are few of the requirements we have to follow when we are into working capital, or we have to be good in working capital management.
So if somebody from you wants to go into finance plus supply chain business, or if you want to do a job in supply chain plus you have should be having a finance background, तो ये चीज़ें आपने माइंड में ज़रूर रखनी होंगी। ओके जी, थोड़ा सा मूव करते हैं फॉरवर्ड। एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अफेक्ट द कंपनीज रिस्क रिटर्न एंड शेयर प्राइस। आगे हमने बात की थी कि प्रॉफिटेबिलिटी, ऑफ कोर्स शेयर प्राइस बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, तो वी हैव टू लुक इनटू इट। थोड़ी देर बाद हम इनको देखते हैं। सो दीज आर बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ओके जी, सिग्निफिकेंस की हमने बात कर ली। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द इश्यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो वर्किंग कैपिटल इश्यूज आर ऑप्टिमल लेवल और या ऑफ करंट एसेट्स की अगर बात करें तो वी है, लेट्स सपोज इफ यू लुक इनटू दिस पर्टिकुलर ग्राफ, so what are the assumptions we are going to take? So our assumptions are maximum output जो है, unit of production जो है, that is 50,000, and currently we are having around 25,000 या 50,000 की हम बात करें तो 50,000 को इस साथ लेके चलते हैं। There are three different policies we have. One is policy A, B and C, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो कि there are three different policies for current asset level for R, which are possible। इन्हीं पॉसिबिलिटीज को लेके चलते हैं। इम्पैक्ट ऑन लिक्विडिटी क्या है जी? पॉलिसी ए, लिक्विडिटी इज वेरी हाई और हाई यू कैन से। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बी, पॉलिसी बी, वी हैव अ लिक्विडिटी ऑफ एवरेज, एंड व्हेन वी हैव पॉलिसी सी, सो वी हैव अ लो लिक्विडिटी। ठीक हो गया जी। अब इसकी बुक को भी थोड़ा सा आप साथ साथ पढ़िएगा, उसमें मेंशन भी है। ग्रेटर current asset levels generate more liquidity. All other factors held constant, just like डिमांड की हमने डिमांड एंड सप्लाई का अगर कॉन्सेप्ट पढ़ो तो हम उसके आखिर में हमेशा सेट्रस पेरिस की बात करते हैं कि हम कहते हैं ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। तो इसी तरीके से हम इधर बात करते हैं, if all other things are remain constant, so greater करंट एसेट्स हमारे पास ज़्यादा होंगे ऑटोमेटिकली। इसका मतलब यही है कि हमारी लिक्विडिटी हाई है, क्योंकि कैश इन हैंड हमारे पास है, या एसेट्स जल्दी ऐसे एसेट्स हैं हमारे पास जो जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हमने सुजुकी कार की भी वैसे बात की थी, है तो वो फिक्स एसेट ही, लेकिन हम बात करते हैं कि इट्स अ कैश। मार्केट में जाएंगे, सुजुकी की कोई भी गाड़ी आप सेल करना चाहें तो बड़े इजीली सेल कर सकते हैं। अदरवाइज योर स्टॉक शेयर प्राइसेस शेयर्स मार्केट में जब भी जाएं तो बड़ी इजीली उसको सेल आउट कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स वी कैन से दैट के जो हमारे शेयर्स हैं, कैश है, या ऐसी कोई भी चीज़ है जो रेडिली हम सेल कर सकें मार्केट में फ़ौरन ही विद इन 2-3 days, तो वी कॉल इट करंट एसेट और मोर लिक्विड फॉर्म ऑफ दोज एसेट्स। तो हमारे पास 3 पॉलिसी हैं जी, ए, बी, सी, जिनकी लिक्विडिटी बी, सी तरीके से है रिस्पेक्टिवली हाई, एवरेज एंड लो। मूव करते हैं जी आगे। रिटर्न ऑन एसेट का क्या फार्मूला था? रिटर्न ऑन एसेट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट ओवर टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स को हम कैसे कह सकते हैं कि टोटल एसेट्स में हमारे पास आ जाते हैं करंट प्लस हमारे फिक्स। करंट एसेट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? आर कैश, रिसीवेबल्स, इन्वेस्टमेंट जो करंट की हुई है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं जो कि करंट एसेट्स में आ जाती हैं। ठीक हो गया जी। मूविंग अहेड जी, हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं। उसमें भी हमारे पास पॉलिसी तो हमारे पास वही 3 है, बट प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल रिवर्स है लिक्विडिटी से। वेयर व्हेन पॉलिसी ए वाज मेंशनिंग दैट के अगर लेट्स गो बैक एंड सी, सो पॉलिसी ए में लिक्विडिटी हाई थी, ठीक है? और जब लिक्विडिटी हाई होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी हमारे पास लो हो जाती है, क्योंकि हमने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। हमने पैसा अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। लॉन्ग टर्म में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर इंस्टेंस वी आर पुटिंग आवर इन्वेस्टमेंट, और वी आर बाइंग a share इन अ स्टॉक, और मे बी यू कैन से हम बैंक में रख लेते हैं फॉर 1 ईयर और लेस देन अ ईयर, तो उसका जो रिटर्न होगा वो कम होगा बनस्बत के हम वही पैसा बॉन्ड्स में लगा दें, विच इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग, स्कूक इस्लामिक बॉन्ड। तो अगर उनमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा रिटर्न जो होगा हाई होगा। बट इफ वी आर पुटिंग आवर मनी इन ए बॉन्ड, तो बॉन्ड में ज़्यादा होगा, स्टॉक में हमारा प्रॉफिट कम होगा। बी इज़ एवरेज, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी एवरेज है। सी, जब हमारे पास लिक्विडिटी कम होगी, हम कैश इन हैंड कम रखेंगे, हमारे
जब पैसा जो है हाईली लिक्विड होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होगी। तो एक्सक्यूज़ मी, सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन हम उतना ही पैसा अपने हाथ में रखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फर्म की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि जब हम अपने पास पैसा हमारे पास पैसा है, तो हम उसको उतना ही पैसा अपने पास रखें जितने की हमारी ज़रूरत है। तो व्हाट वी कैन डू इज़ के हम उस पैसे को रिमेनिंग अमाउंट को जो हमारी ज़रूरत का नहीं है, तो हम उसको इन्वेस्ट कर दें फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ताकि हमें उस पे एक अच्छा रिटर्न मिल सके। बहुत से लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया होता है, बहुत से लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता है, डॉलर में इन्वेस्ट किया होता है, और इसी तरीके से डिफरेंट एसेट्स बनाए होते हैं या इन्वेस्टमेंट की होती है। तो व्हाई इज़ दैट? बिकॉज़ दे यूजुअली गेट मोर ऑफ द रिटर्न। ठीक हो गया? सो अगर हम सब कुछ अपने हाथ में रखेंगे तो हमारे पास ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी या कम प्रॉफिटेबिलिटी होगी, क्योंकि हमने बैंक में पैसा रखा है तो कुछ तो रिटर्न मिलेगा ही, बट ज़्यादा नहीं मिलेगा। एंड द बुक सेज एज करंट एसेट लेवल्स डिक्लाइन टोटल एसेट्स विल डिक्लाइन एंड द आरओआई विल राइज। ठीक हो गया? करंट एसेट को हमने कम कर दिया, हमारे पास करंट एसेट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट प्रॉफ़िटेबिलिटी हमारी इंक्रीज़ होगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि हमने वही पैसा कहीं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मेबी हमने कोई प्लॉट ले लिया, हमने मशीनरी ले ली, मशीनरी से कुछ काम बना कर लिया, या कुछ भी, यू कैन टेक एनी एग्जांपल बाय योरसेल्फ, एंड आप अपनी फैमिली को देख सकते हैं, फैमिली किस तरीके से इन्वेस्ट करती है। यस, दिस कुड बी अ गुड एक्सरसाइज फॉर यू गाइस कि टॉक टू योर पेरेंट्स कि उन्होंने किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की हुई है, एंड यू माइट सजेस्ट देम टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्गर टर्म इफ दे आर नॉट डूइंग इट सो, ताकि वो लॉन्गर पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करें, ताकि वो कुछ अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। ओके जी, मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट इम्पैक्ट ऑन रिस्क। तो decreasing cash reduces the firm's ability to meet its financial obligation. So कैश कम होगा तो इन्वेस्टमेंट जो है या वर्किंग कैपिटल की अगर बात करें तो इट इज़ मोर रिस्की इफ इट इज़ सो अगर कंपनी की पॉलिसी स्ट्रिक्ट होगी, ठीक है? सो जब तक कंपनी की पॉलिसी क्रेडिट पे स्पेशली स्ट्रिक्ट होगी, तो आपके पैसे भी अगर रिसीव कम हो रहे हैं तो ज़्यादा लॉस हो सकता है सेल्स पे। तो इट इज़ अगेन मोर रिस्कियर, ठीक हो गया? एंड इफ लोअर इन्वेंट्री लेवल, तो इन्वेंट्री लेवल अगर लो है, ऑलरेडी बात हो चुकी है कि इन्वेंट्री ज़्यादा आप अपने पास नहीं रखते, तो अगेन जो रिस्क है वो आपका बढ़ सकता है, क्योंकि आप अपने पास स्टॉक नहीं रख रहे, आपके पास इन्वेंट्री लेवल ज़्यादा नहीं है। तो क्या होगा, आपके पास मार्केट में बेचने के लिए भी चीज़ें नहीं होंगी, स्टॉक आउट्स ज़्यादा हो गए, सेल लॉस भी हो सकता है। तो डिफरेंट अजम्पशंस पे हम काम कर सकते हैं, तो उनको हम देख सकते हैं। तो व्हेन we are talking about liquidity, तो हाई द लिक्विडिटी रिस्क इज लो, क्योंकि कैश आपके पास है, रिस्क है ही नहीं है। एवरेज अगर आपके पास कैश होगा तो एवरेज ही रिस्क होगा, बट इफ यू डोंट हैव मच ऑफ द कैश, ठीक है, आपने ज़्यादातर चीज़ें इन्वेस्ट की हुई हैं, तो क्या होगा, रिस्क हाई होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने रीपे कैसे करना है, आपने नई चीज़ें कैसे परचेज़ करनी है, तो ये सारी चीज़ें जब नहीं होंगी, लोन भी शायद आपको ज़्यादा लेना पड़ जाए, तो आपके पास अपने करंट एसेट्स नहीं हैं, तो आपकी चीज़ें, आपके आपके जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, इट इज़ मोर रिस्कियर, ठीक हो गया? तो रिस्क इंक्रीज़ेज़ एज़ द लेवल ऑफ करंट एसेट्स आर रिड्यूस्ड, करंट एसेट नीचे आया, रिस्क आपका बढ़ना शुरू हो गया। और इसी को अगर हम एक टेबल पे देखें, तो टेबल से छोटी-सी समरी है, इसको आप अपने माइंड में ज़रूर बिठा लीजिएगा कि पॉलिसी ए, इसमें हमने बात की कि लिक्विडिटी इज़ हाई, तो प्रॉफ़िटेबिलिटी क्या हुई? लो हुई। रिस्क भी लो हो गया ऑटोमैटिकली, क्योंकि प्रॉफ़िटेबिलिटी भी नहीं है, रिस्क भी नहीं है। जैसे एक फाइनेंस का एक सिंपल सा रूल हम कहते हैं, मोर द रिस्क मोर द रिटर्न। तो उस कॉन्सेप्ट को सामने रखिएगा कि लिक्विडिटी इज़ हाई, क्योंकि कैश आपके अपने पास रखा हुआ है। लिक्विडिटी लो हो गई, रिस्क भी इसका लो हो गया।
एंड पॉलिसी बी क्या है जी? हमारे पास एवरेज है जी, नॉर्मल सा है। हमारे पास कैश भी है और करंट एसेट में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं रखा हुआ हमने, अपने पास नहीं रखा हुआ, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी एवरेज ही है और रिस्क भी नॉन या एवरेज ही रिस्क है। पॉलिसी सी क्या थी हमारे पास? लिक्विडिटी इज लो, हमने ज़्यादातर चीज़ें इन्वेस्ट की हुई हैं, प्रॉफिटेबिलिटी हमें ज़रूर मिल रही है, रिस्क भी हमें ज़्यादा बियर करना पड़ रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी वेरीज इनवर्सली विद लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी अगर ऊपर जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी हमारी नीचे आ जाएगी। अगर लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी हमारी नीचे जाएगी तो लिक्विडिटी ऊपर जाएगी। या इसको रिवर्स एंगल से भी आप देख सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी मूव्स टुवर्ड्स द रिस्क, बिल्कुल टुगेदर विद द रिस्क। सो जैसे जैसे प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर जाएगी, रिस्क भी इंक्रीज आपको होगा। एंड अगर प्रॉफिटेबिलिटी नीचे आएगी तो ऑफ कोर्स उसकी रीज़न ये है कि आपने रिस्क नहीं लिया, तो इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी भी आपकी कम हो रही है। ओके जी, लास्ट थिंग ऑफ टुडेज टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। इट्स ए देयर आर टू, it is classified into two things. One is components, the other thing is time. So, what are components? Components are cash, marketable securities, receivables, and inventory. Already हम बात भी कर चुके हैं. And time, किस टाइम पे हम काम करते हैं, वर्किंग कैपिटल कैसे चल रहा होता है. It is permanent time and it is a temporary time. So, जब हम बात करते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल की, तो इट्स अ परमानेंट करंट एसेट्स। और टाइम की भी अगर बात करें तो हमारे परमानेंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं। टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने किस तरीके से अपने एसेट्स को लेके चलना है, हमने उसको सेल आउट करना है नहीं करना, हमारी इन्वेंट्री किस तरीके से, हमने उन चीज़ों को देखना होता है। द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स रिक्वायर्ड टू मीट अ फर्म्स लॉन्ग टर्म मिनिमम नीड्स। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स दैट वेरीज विद सीजनल रिक्वायरमेंट्स। तो जैसे कपड़ों की बात होती है, सीजन आता है और जब न्यू वॉल्यूम्स आते हैं, जस्ट लाइक लॉन की बात करते हैं, तो आपको पीक नज़र आती है। तो आप इस पिरामिड्स, आप तीन पिरामिड्स देख रहे हैं वो होंगे, या माउंटेन्स देख रहे होंगे। तो दिस इज बेसिकली टेम्परेरी करंट एसेट्स, जिसकी थोड़ी सी पीक भी आपको नज़र आ रही होगी। कैश ज़्यादा होता है, आप नई चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन अगेन एसेट्स ही परचेज कर रहे होते हैं। और साथ साथ आप परमानेंट को भी देख रहे हैं। परमानेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, आप ऊपर जाए नीचे जाए, बट रहते आप उसी एसेट्स, परमानेंट एसेट पे ही हैं। पर टेम्परेरी करंट एसेट्स की अगर बात करें तो अप एंड डाउन उनमें आता रहता है, सीजनल इफेक्ट चल रहा होता है। सो इसी तरीके से हमारे पास कुछ चीज़ अप एंड डाउन आ रहे हैं, और इसी तरीके से हमारी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चल रही होती है। सो इफ़ यू हैव रीकैप, अगर इसी आज के लेक्चर का अगर कर लें, तो what we have studied today: working capital issues, significance हमने डिस्कस किए, इश्यूज डिस्कस किए, एंड हमने बात की दी कंपोनेंट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो दिस इज इट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। सो आई बी ऑनलाइन इन द मॉर्निंग। सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी तो उसको उसी जगह हम डिस्कस कर लेंगे। Thank you very much. And again, if you have any question, though, this is my email address. You can ask me a question, and I'll be happy to answer your queries.